EZ notations, and finally we were discussing about the DL notations. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. So you have seen carbohydrates for the DL notations or not? कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस किया था मैंने, नहीं किया था? नो सर, अमीनो एसिड क्या था? अमीनो अमीनो एसिड क्या एसिड. है सर? कार्बोहाइड्रेट. Okay, okay. So you have seen the RS notations and DL notations are absolute method of assigning configuration to the molecule. Am I right? Yes, sir. But if you talk about the DL notations, they are relative method of assigning configuration with respect to the diglyceraldehyde. Initially, if you see the DL notations, it was given by the Emil Fischer for glyceraldehyde molecule. So this is the Fischer projection formula, or this is the Fischer representation formula in which we have represented the glyceraldehyde molecule. Another configuration possible for this glyceraldehyde molecule is here, which has the OH on the left hand side. So both the molecules are glyceraldehyde. Yes, sir. Both are glyceraldehyde. Yes, sir. Okay. So in one it is having OH on the right hand side, another is having OH on the left hand side. So initially, Emil Fischer gave this DL notations for this glyceraldehyde molecule. He arbitrarily, without following any set rules, he assigned D configuration to the glyceraldehyde molecule, which is having OH on the right hand side of the Fischer projection formula. So it was assigned D configuration. So you can say this is the D-glyceraldehyde molecule. Another molecule which is having OH on the left hand side in Fischer projection formula was given L, सर एल. capital L configuration. ठीक है, तो ये हमारे पास अब स्टैंडर्ड कंपाउंड है, नॉन कंपाउंड है. By taking these compound as reference, we can assign configuration to the other molecules. It is a sugar molecule. It is the simplest sugar found in the nature. So simplest aldose sugar. So definition of carbohydrates or sugar is they contain at least one or more aldehydic or ketonic group along with polyhydroxyl groups. Means at least two hydroxyl group must be there. Okay, so here you can see it has two hydroxyl groups. So more than one hydroxyl group is required to become a carbohydrate molecule along with the presence of aldehydic or ketonic group और their derivatives. ठीक है, बाद में हम उनको डेरिवेटाइज कर दें, किसी और उसमें कन्वर्ट कर दें, देन दे विल आल्सो रिमेन कार्बोहाइड्रेट्स. So this is the simplest carbohydrate. So based on that, you can assign configuration to the other carbohydrate molecules. For example, we are having this molecule. What is this? This is erythro sugar. This is erythro sugar. But I don't know whether we can write here D or L before the name of this D है erythro sugar. D sir. D It है सर. is D. It is D. Why it is D? सर ये जो कायरल कार्बन है ना, इसके ये OH देखेंगे कहाँ लग रहा है, लेफ्ट में राइट में? OH राइट साइड में है. कौन से कायरल कार्बन में देखना है? सर वो लास्ट वाला CH2OH के बाद. जो CH2OH के नियर में है, इसका हमें देखना है कॉन्फ़िगरेशन. और यू कैन से इफ यू नंबर दैट here 1 2 3 and here this is 1 2 3 4. 2 and 3 are chiral carbons. Am I right? 2 and 3 both are chiral carbon.
but the chiral carbon which has been numbered highest, or you can say which is farthest asymmetric carbon. Okay, so we have to see the configuration at this carbon only, not on the other carbons. So this is having OH on the right hand side. Right hand side means it is d-erythrose. It is d-erythrose. Similarly, if you are having a molecule this is threose sugar, दिस इज थ्रियोज सुगर. कौन सा थ्रियोज है, डी है या एल है, ये बताइए आप मुझे. सर एल है. कार्बन. सर एल है. Okay, so highest numbered has OH on the left hand side. This is having OH on the left hand side. Left hand side. So it is L3Os. Similarly, you can assign configuration to. Sir, हाँ बोलिए पूजा. sir, can you explain again? फिर से बता देता हूँ एक बारी. देखो हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल आपको समझ में आ गया. इसका असाइन किया था किसने, एमाइल फिशर ने. अपनी मर्जी से किया था, कोई सेट रूल नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपने उसको लगा कि जहां पे OH राइट हैंड साइड में, he gave D configuration to that glyceraldehyde molecule. जहां पे OH लेफ्ट हैंड साइड में gave L to that glyceraldehyde molecule. ठीक है. So by following his way of assigning configuration, we can assign configuration to the another carbohydrate molecules. तो दूसरे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में क्या होता है, जब हम चेन इंक्रीज करते हैं तो दिस जो ये कार्बन है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल कार्बन ऑफ द ग्लिसरॉल्डिहाइड. ठीक है. दिस कार्बन विल रिमेन एज इट इज. वी हैव टू ऐड मोर कार्बन हियर टू इंक्रीज द चेन. तो जब आपके ये 3 कार्बन वाला सुगर है, ये 4 कार्बन सुगर है, जब हम 4 कार्बन जाएंगे तो हम कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पर. तो यहाँ के बाद एक CHO ऊपर चला जाएगा और ये इस तरह से हमारी चेन इंक्रीज होती रहेगी. दिस इज कॉल्ड किलियानी फिशर सिंथेसिस. वो जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा. ठीक है. तो लेकिन जो हमारा ओरिजिनल कार्बन है, इट विल रिमेन एज इट इज. अगर हम नंबरिंग करेंगे यहां से देखेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा ओरिजिनल कार्बन है, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड था, इट इज नियर टू द CH2 ग्रुप. तो नियर जो CH2 ग्रुप के कौन सा कार्बन है, नंबर 3 हियर. दिस 3 इज नियर टू द CH2 ग्रुप. या फिर हम जब IUPAC के हिसाब से नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमें पता है कि CHO विल गेट द लोएस्ट नंबर 1 2 3 4. so your this third chiral carbon, highest numbered chiral carbon. ठीक है. इसको देखना है हमें, या हम कह सकते हैं दिस इज द फारदेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन. इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना है इन रिलेशन टू दिस डीग्लिसरॉल्डिहाइड और L-ग्लिसरॉल्डिहाइड. तो डीग्लिसरॉल्डिहाइड में कहां पे था, ये राइट हैंड साइड में. तो यहां पर भी कहां है, ये राइट हैंड साइड में. लिविंग बिहाइंड कॉन्फ़िगरेशन एट अदर कार्बन्स. दिस configuration at other carbon will not affect our notations. ठीक है. चाहिए अब OH आपका लेफ्ट में हो, राइट में हो, इससे ऊपर वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. we have to see only this highest numbered asymmetric carbon which is original, or you can say which is originated from the deglyceraldehyde. क्लियर पूजा, या कुछ और पूछना अभी. इसी तरह से आप यहां देखोगे तो ये जो हमारा हाईएस्ट नंबर में OH कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में. दैट्स व्हाई वी हैव असाइंड इट L कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज ए रिलेटिव मेथड ऑफ असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन. और रिलेटिव में मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव में हम एक नॉन या स्टैंडर्ड कंपाउंड के रिलेशन में निकालते हैं. See more examples.
1 2 3 4 5 एंड 6, ये है हमारा ग्लूकोज। अब डी आपको बताना है ग्लूकोज कि सर। डी है या एल है। सर डी। डी है, डी। डी है। कैसे पता Yes, sir. चलेगा हमें कि जो हमारा सर देखो, राइट हैंड साइड में OH है। फिफ्थ नंबर कायरल कार्बन, दिस इज हाईएस्ट नंबर एसिमेट्रिक कार्बन, और यू कैन से दिस इज ओरिजिनल कार्बन इन रिलेशन टू द ग्लिसरल्डिहाइड। तो ये इसमें आपको दिख रहा है कि OH कहां पर है, राइट हैंड साइड में। इसलिए ये हमारा ग्लूकोज कैसा है, डी ग्लूकोज। सिंपल है। एक और देख लो फ्रक्टोज का, CH2OH। फ्रक्टोज नहीं है ये, बट ये जो भी कार्बोहाइड्रेट है, दिस इज नॉट ए फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। अब बताओ ये डी शुगर है या एल शुगर है। सर एल है। सर एल शुगर है। एल, बिकॉज दिस इज हैविंग OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। So this is L sugar, L हेक्सूज है, कीटो हेक्सूज। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं ये डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज से आपको एल ग्लूकोज बनाना है, तो क्या करेंगे, आपको क्या चेंज हमें करने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैं यहाँ रुक गया था। मैंने तभी बना तो रहा था मैं क्या एल सर? कीटो, एल फ्रक्टोज, जैसे ये डी ग्लूकोज है, ठीक है। यस सर। मैं आपसे कहूं कि आपको एल ग्लूकोज बनाना है, तो कैसे बनेगा डी ग्लूकोज का एल ग्लूकोज। इसको रोटेट कर देंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री फिर बन जाएगा। 180 डिग्री करने से तो CH नीचे आ गया, CH2OH ऊपर आ गया, वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिशर ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला में प्लेन में तो रोटेट कर OH सकते हैं। ग्रुप को चेंज कर देना, रोटेट। देखो पहले हमें समझना है कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में रिलेशन क्या होता है। सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है, तो आप ये नोट कर लेना, ऑल डी सुगर्स आर इनइंशोमर्स ऑफ एल सुगर्स। ये बहुत एक टैग लाइन है जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी। क्या लिखा है मैंने, दोबारा बोलना सर। डी सुगर्स आर, ऑल डी सुगर्स आर enantiomers of L sugars and vice versa. All L sugars are enantiomers of D sugars. All D sugars are enantiomers of L sugars. अब मुझे एक बात बताओ, enantiomers क्या होते हैं। enantiomer की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं पहले ही, सर नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस। मिरर इमेज। इसका मतलब क्या है, मिरर इमेज बनानी है हमें। जब मैं आपसे कहूंगा डी ग्लूकोज का आपको एल ग्लूकोज बनाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने OH को उठा करके लेफ्ट कर दिया तो ये डी का एल बन गया। नो, दैट इज रॉन्ग। राइट क्या होगा, बिकॉज डी सुगर्स आर इनइंशोमर्स ऑफ एल शुगर। तो डी ग्लूकोज से जब भी आप एल ग्लूकोज बनाओगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसका इनएंशियोमर, उसका मिरर इमेज बनाना पड़ेगा। और मिरर इमेज का मतलब क्या हुआ, जब आप ड्रॉ करोगे तो जहां डी OH राइट हैंड साइड में वो सब लेफ्ट में चले जाएंगे, लेफ्ट वाला राइट में आ जाएगा, तब आपका बनेगा D2L। सिर्फ एक मेरली चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन एट वन कार्बन विल नॉट चेंज द D sugar into the L sugar. Are you getting my point? देखो, यस सर। देखो अब मैं बताता हूं आपको। ये डी ग्लूकोज है मेरे हाथ के पास, अब मुझे इसको बनाना एल ग्लूकोज। इसका मतलब मुझे इसकी क्या बनानी पड़ेगी, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मुझे बनानी पड़ेगी। CH2OH और ये हो गया आपका CHO, ठीक है। अब मिरर इमेज कैसे बनेगी, जब हम मिरर में देखेंगे इसको तो ये OH जो अभी राइट में दिख रहा है कहां पे दिखेगा, लेफ्ट में। ये OH राइट में दिख रहा है, ये कहां दिखेगा, लेफ्ट में।
ये H जो राइट में दिख रहा है ये कहाँ दिखेगा, लेफ्ट में। ये OH जो राइट में दिख रहा है वो कहाँ दिखेगा, लेफ्ट में। H OH H एंड H। अब बन गया ये L ग्लूकोज। अब आप देखो क्या मैंने सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया एक ही कार्बन के ऊपर, नो नहीं किया सर। ना, मैंने नो सब पे सर। चेंज किया है। और अगर आप गलती से कोई आपसे ये कहे कि मैंने सिर्फ इसमें C5 का OH राइट की जगह लेफ्ट में कर दिया और अब ये L ग्लूकोज बन गया, दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो कभी भी किसी कंपटीशन में आपसे कोई पूछता है तो आप हमेशा ध्यान रखो जितनी भी डी शुगर्स हैं वो L शुगर की क्या होती है, एनेंशियोमर्स। तो ये L ग्लूकोज है। अब बना है ये L ग्लूकोज। ऐसे मैंने जो फ्रक्टोज का दिखाया था, अगर हमें फ्रक्टोज को अगर L में कन्वर्ट करना है तो हमें सब कुछ ही चेंज करना पड़ेगा उसका। वहां जो मैंने एग्जांपल दिया था वहां मैंने सिर्फ एक कार्बन का चेंज किया। ये है फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। कौन सा फ्रक्टोज है ये, डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज। अब मैं कहूं आपसे एल फ्रक्टोज बनाना है तो कैसे बनेगा, सर इसका मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज बनाना पड़ेगा हमें। बिल्कुल ठीक है, टी डबल बॉन्ड O CH2 OH CH2 OH, ये OH यहाँ आएगा, ये OH भी यहाँ पे आएगा, ये H आएगा। ये एक मुझसे गलती से ज्यादा बन गया है, उसको सही कर लेना, ये नहीं है इसमें। ठीक है, अब बना है ये हमारा एल फ्रक्टोज। देखो मैंने पहले बनाया था वो नहीं था ना सेम ऐसा, तो ये हमने कर लिया डीएल नोटेशन इन केस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ये कन्वीनियंट वे ऑफ असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि यहाँ में ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर अदरवाइज अगर आपको आरएस नोटेशन असाइन करने पड़े तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि सारे कायरल कार्बन्स के लिए हमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस असाइन करने पड़ते। तभी हम लिख सकते थे इसके नेम के आगे हमें लिखना पड़ता 2R 3S 4R 5S, जो भी कुछ होता उसका। जस्ट अ मिनट, एक कॉल रिसीव करना। ठीक है, समझ में आ गया। कार्बोहाइड्रेट में अगर हमें डीएल असाइन करने हो तो कैसे करना है, एंड इट इज इजी वे ऑफ assigning configuration rather than using R and S notations, because for RS we have to assign configuration to all the chiral carbons and sugars have multiple chiral carbons. So now you see how can we extend this DL notations to the amino acids. अमीनो तो पढ़ा दिया था सर। पढ़ा दिया था, कर लिया ना आपने वो, ठीक है तो फिर कोई बात नहीं, Yes, छोड़ते sir. हैं इसको, आगे चलते हैं। अमीनो में क्या देखना होता है हमें बताओ, पढ़ा दिया ना मैंने, NH2। NH2 की पोजीशन। ठीक है, ठीक है। जैसे OH देख रहे हैं उसी तरह से हम NH2 देख लेते हैं अमीनो एसिड्स के केस में। तो ये हमने सब कर लिया है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले, कन्वर्जन ऑफ वेज-डैश फॉर्मूला इनटू द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड देन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इनटू द वेज-डैश फॉर्मूला।
क्योंकि कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है इंटर कन्वर्जेंस की, जो कि आपके सिलेबस में भी मेंशन है। कन्वर्जन ऑफ wedge dash formula into Fisher formula, ये करेंगे। RS नोटेशंस आप अच्छे से सीख गए हो करना, तो अब आप आराम से वेरीफाई भी करके देख सकते हो कि हमने जो कन्वर्जेंस किए हैं वो सही किए हैं या गलत किए हैं, कि आपके टीचर आपको सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, है ना। तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो वेज डैश फॉर्मूला में एक स्ट्रक्चर लिखता हूं आपको पहले। ये स्ट्रक्चर है, किस फॉर्मूला में लिखी हुई है? ये वेज डैश फॉर्मूला में लिखी हुई है। अब हमें इसकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनानी है, किसमें? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये फिशर प्रोजेक्शन है, सिंपल। अब आप मुझे बताओ कि इसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कैसे शिफ्ट करोगे? कोई आइडिया? सर ये जो ब्रेकिंग वाला है ये तो इस पे आएगा, हॉरिजॉन्टल पे। ब्रेकिंग वाला हॉरिजॉन्टल पे आएगा। ढंग से सोचो एक बार। शायद सर। सर OH ऊपर आएगा, H नीचे आएगा, CHO लेफ्ट और CH2OH राइट साइड। ठीक है, चलो खैर जो भी व्हाटएवर। मैं आपको ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि अगर आपको कहीं सोते हुए को भी जगा के पूछेगा ना कि इसको कन्वर्ट कर दो, तो आप कर दोगे आराम से। ठीक है, पहले समझो कि ये कैसी स्ट्रक्चर है हमारी 3D। ये स्ट्रक्चर कैसी है हमारी 2D। हम जा रहे हैं 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने। और इसका आपको पता है कि ये जो ब्रोकन लाइंस होती हैं कैसी होती हैं? ये जो हमारी वर्टिकल लाइन ये कैसी होती है? ब्रोकन लाइन होती है। यही था ना हमारे 2D स्ट्रक्चर में, ये ब्रोकन लाइन होती है और ये हमारी कैसी होती है? टुवर्ड द ऑब्जर्वर। इस तरह से है हमारा इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन। तो हमें इस 3D स्ट्रक्चर को 2D में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? हमारे पास सिर्फ एक पोजीशन कॉमन है यहाँ पे। क्या कॉमन है? कि ये जो ब्रोकन लाइन है वो हमारे पास भी है, एक ब्रोकन लाइन यहाँ पे। So group which is on the broken line in the wedge dash formula has to be shifted to the broken line, or you can say the vertical line in the Fisher projection formula. ठीक है, अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा कि आपको ऊपर रखना है या नीचे रखना है। इट्स योर चॉइस। सपोज करो मैंने इसको नीचे रख दिया ब्रोकन लाइन पे, यहां आ गया मैं लेकर के रख दिया, एक काम हमारा खत्म। अब बाकी जो हमारे पास जो ग्रुप बच गए हैं इनको हमें कैसे रखना है? देखो इनकी पोजीशन कैसी है, ऐसे अगर हम रखेंगे तो क्लॉकवाइज देखें हम पोजीशन तो क्या है, पहले CH2OH आता है, CHO आता है, फिर OH आता है। अब आपकी मर्जी है कहां से आप रखना शुरू करोगे, कहीं पे भी रख दो, देयर इज नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बस जो ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज जो इसका सीक्वेंस है जो ग्रुप्स का, CH2OH आ रहा है, फिर CHO आ रहा है, फिर OH आ रहा है, इट हैज टू बी मेंटेन्ड। ये मेंटेन करना है बस हमें। देखो मैं कैसे करता हूं, मैंने सपोज करो CH2OH को यहाँ पे रख दिया, CH2OH, उसके बाद मैंने रखा CHO को, उसके बाद OH। हो गया, मेंटेन हो रहा है। देखो यही सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है, CH2OH CHO OH। क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज देखोगे आप तो CH2OH OH एंड CHO, तब भी ये मेंटेन हो रहा है, CH2OH OH एंड CHO। मैं CH2OH को यहां ना रख करके यहां रख देता CHO की पोजीशन पे, और तो CHO यहां आ जाता, OH यहां आ जाता, तब भी हमारा सीक्वेंस मेंटेन होता। ठीक है, कुछ नहीं देखा हमने, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया कि जो हमारा ब्रोकन लाइन पे ग्रुप है, इट मे बी हाइड्रोजन, इट मे बी अदर ग्रुप, वी हैव टू प्लेस दैट ऑन द वर्टिकल लाइन। ऊपर रखो नीचे रखो, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। रिमेनिंग ग्रुप्स attach with the chiral carbon of the wedge dash formula,
has to be kept into the Fisher projection formula, maintaining their sequence either clockwise or anti-clockwise. सिर्फ ये रखना है। मैंने ये बना दिया स्ट्रक्चर, मेरे हिसाब से ये करेक्ट है, मैं मानता हूं कि ये सही किया है मैंने। अब आपको वेरीफाई करना है इसे। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? बाई असाइनिंग आर एंड एस, क्योंकि आर एंड एस क्या है? एब्सोल्यूट मेथड है। वर्ल्ड वाइड एक जैसे रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं आर एस असाइन करने के लिए। तो हम असाइन करके देखते हैं, अगर दोनों का सेम आता है इसका मतलब हमने ठीक किया है। अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है, एक आर आ रहा है दूसरा एस आ रहा है, इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, नाउ sir. असाइन आरएस कॉन्फ़िगरेशन, असाइन करो अब दोनों को अलग अलग प्रायोरिटीज के हिसाब से। फर्स्ट प्रायोरिटी OH, सेकंड प्रायोरिटी CHO, थर्ड प्रायोरिटी CH2OH, ठीक है। और H ऑलरेडी ब्रोकन लाइन पर है, तो हमें इसमें कोई इंटर कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम देख सकते हैं इसमें आराम से। तो पहले वाले में एरोज को मिटा देता हूं क्योंकि जब हम RS के लिए मूवमेंट देखते हैं तो वी मूव फ्रॉम द ग्रुप नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 3, लिविंग बिहाइंड द प्रायोरिटी नंबर 4। तो ये प्रायोरिटी नंबर 4 हमने छोड़ दिया, सही। तो जब हम 1 2 3 करेंगे तो क्या होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ? S। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है इसका? S। अब दूसरे वाले का देख लेते हैं। दूसरे में भी प्रायोरिटीज तो सेम ही रहेंगी, 1 2 3, बिकॉज ग्रुप्स सेम है तो प्रायोरिटी भी सेम रहेगी 4। और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा ऑलरेडी कहां पर है? ब्रोकन लाइन पर है, तो हमें कोई इसमें भी इंटरचेंज की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखिए 1 2 3 क्या रहा है? ये Anti-clockwise. S, Yes. एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब जो हमने किया है वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक और एग्जांपल देता हूं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। और इसको कन्वर्ट करना है आपको इसमें फिशर प्रोजेक्शन सर फॉर्मूला में। NH2 ब्रोकन लाइन पे है क्या? हाँ, ब्रोकन लाइन पे NH2, ये ब्रोकन लाइन पे। जब हम कन्वर्ट करेंगे तब हमें कोई प्रायोरिटीज असाइन नहीं करनी है, ये बात हमेशा ध्यान रखना माइंड में। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। सिर्फ हमें इस 3D स्ट्रक्चर को, सबसे पहला काम हमें क्या करना है? 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन के टाइम कोई प्रायोरिटी कुछ नहीं असाइन करनी है, डायरेक्टली आप कर सकते हो ना। ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, लोएस्ट प्रायोरिटी है या हाईएस्ट प्रायोरिटी है, इससे कुछ मतलब नहीं है। हो गया सर। हो गया। अब इसका RS आप असाइन करके देखो दोनों का, और बताओ कि क्या आपने करेक्ट किया हुआ है, वेरीफाई करो। तो क्या करेंगे हम? सपोज करो हमने इस NH2 को यहाँ पे रख दिया, आप ऊपर भी रख सकते, कोई इश्यू नहीं है। बाकी हमारा OH CH3 CH2OH ये सीक्वेंस है हमारा। तो हमने यहाँ पे OH रख दिया, यहाँ CH3 रख दिया, यहाँ CH2OH। अब प्रायोरिटीज अगर हम असाइन करके देखें तो प्रायोरिटी OH की पहले होती है, NH2 की सेकंड होगी, थर्ड CH2OH की होगी, फोर्थ होगी CH3 की। तो प्रायोरिटी रूल के हिसाब से अगर हम देखें, S मूव करें, कॉन्फ़िगरेशन। तो ये S हो गया, ठीक है। इधर से हम देखें 1 2 3 एंड 4, तो हमारी प्रायोरिटीज के हिसाब से मूवमेंट कैसी आ रही है? ये S।
इसका मतलब हमने ये कन्वर्जन भी गलती से ठीक कर दिया है। यस लीजिए, और एग्जाम्पल्स आप बुक में देख लेना, उठाना बुक के एग्जाम्पल्स, कहीं मिलेंगे आपको तो फिर उनको कन्वर्ट करके देखना। एक और देख लेते हैं। इसको कन्वर्ट करना है। अमीनो एसिड है ये। कौन सा अमीनो एसिड है? फिनाइल एलेनिन है ये, फिनाइल एलेनिन, PHE। फिनाइल एलेनिन को रिप्रेजेंट करते हैं PHE से। हो गया? किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत? हो गया सर। हो गया ना? बाकी लोग बताओ, बाकी का स्टेटस क्या है? हो गया? ठीक है। देखो, मैं अब की बार H को नीचे ना रख के मैं तो ऊपर रखूंगा, अब मेरा मन है ऊपर रखने का। ठीक है। अब बाकी ग्रुप क्या है? NH2। मैं NH2 को यहाँ रखूंगा। NH2 मुझे यहाँ रखना है, तो उसी के हिसाब से मुझे CH2 कहाँ रखना चाहिए? यहाँ पर, CH2PH। और बाकी क्या रह गया? थर्ड CHO, तो COOH को मुझे यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है। अब मैं देखता हूँ, इसको वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई करेंगे तो NH2 सबसे पहले प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी COH, थर्ड प्रायोरिटी CH2PH, एंड फोर्थ प्रायोरिटी ये हो गया। सेम यहाँ पे भी वही होगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब मैं देखूंगा इसमें प्रायोरिटी 1 टू प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 1 टू प्रायोरिटी 3 कैसा मूवमेंट है? ये एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा हो गया? फिर एस फिनाइल एलेनिन हो गया ये। इधर देखता हूं मैं, 1 2 3 कैसा आ रहा है ये मूवमेंट? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी एस फिनाइल एलेनिन है। इसका मतलब ये भी तरीका ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार अभी भी फिर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। सर ये NH2 नीचे क्यों आया? मेरा मन हुआ, मैंने रख दिया इसको। मैंने आपको भी तो चॉइस दी हुई है, चॉइस दी ना मैंने आपको। सर ऐसे कैसे? आपका जहां मन हुआ रख दो। है? सर देखो, ऐसे कैसे मन होगा? सर बस आपने मन देखो, ऐसे ही हुआ। ब्रोकन लाइन पे S था, तो आपने ऊपर हाँ नीचे कहीं पे भी रख लिया, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद NH2 को भी ऐसे ही रख ले सर, कहीं पे भी। इनका सिर्फ सीक्वेंस मेंटेन करना है। क्या करना है हमें? सीक्वेंस मेंटेन तो सर करना है। देखो, तो सीक्वेंस में सर हमारा NH2 CH2PH OH, सीक्वेंस ही तो मेंटेन करना है। अब देखो, मैंने यहाँ से हटा दिया, आप कह रहे हो यहाँ नहीं रखना, मत रखो। किसने कहा यहाँ रखना है?
दो, मैं और दूसरी पोजीशन पे, तुम कहोगे जहां उस पोजीशन पे रखूंगा, बताओ कहाँ रखना है। मैंने तो आपको कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई नहीं है, आप मुझे सर रेस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो फिर? एच के साइड में बताओ। रखो, एच के एच के साइड में। साइड यहाँ लेफ्ट में, रखना है लेफ्ट। ना, हाँ सर, हाँ सर, यहाँ पे। यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। NH2। अब आपके हिसाब से क्या आना चाहिए नेक्स्ट? CH2PH। ये लो मैंने यहाँ रख दिया CH2PH। अब क्या आना चाहिए? COH, यहाँ COH आ गया। अब फिर से मैं प्रायोरिटी असाइन करता हूँ, 1 2 3। क्या आया ये? कैसा रोटेशन आया? यस। कोई फर्क पड़ा? नो सर, ठीक है सर। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं यस पड़ेगा। मैं सर। वही कह रहा हूँ, अपनी मर्जी है, आपको फुल फ्रीडम दी हुई है मैंने, ठीक है। तो इसमें देखो ओके एक्चुअल सर। में क्या है, जब हम जब भी देख रहे हैं ना सीक्वेंस, जब हम तो रोटेशन देख रहे हैं फाइनली भी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। सीक्वेंस हमने डिस्टर्ब नहीं करा। अब चाहे मैं इसको यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, तो रहेगा तो रोटेशन तो एंटी क्लॉकवाइज ही ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। ये यस सर। अगर मैं सीक्वेंस गड़बड़ कर देता, NH2 रख देता पहले, फिर यहाँ पे COH रख देता, फिर CH2PH रखता, तब वो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता। जो यहाँ पे था वो मेंटेन नहीं रहता फिर, तो वहां आपका फिर ओके गलत सर। आता। वो सिर्फ ओके सर। मेंटेन करना है आपको, ठीक है। यस सर। नाउ सी द रिवर्स। अब हम इसका रिवर्स कैसे करें कन्वर्जन, वो भी जरूरी है। अब आपके पास 2D में स्ट्रक्चर गिवन होगा, 3D में आपको कन्वर्ट करना है उसे। ये बुक में नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ ऐसे कहीं पे, इसलिए मैंने आपको स्पेशली कहा है इसको नोट कर लेना, समझ लेना। किसी को दिक्कत है तो पूछ लेना, इससे सिंपल तरीका नहीं होता इसको कन्वर्जन का। Conversion of Fisher projection formula into wedge dash. ये मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया जिसमें यहां मैं Cl लगाऊंगा आपकी बार, CH2OH, H, यहाँ NH2। ये एक मॉलिक्यूल है आपके पास, इसको कन्वर्ट करना है इसमें। ये हो गया इसका 3D स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका 2D स्ट्रक्चर। कैसे कन्वर्ट करें इसको? कैसे करना चाहिए? सर एच को तो ब्रोकन लाइन पे, और फिर सीक्वेंस के हिसाब से। बिल्कुल सही है। H को हमें कहाँ रखना चाहिए? ब्रोकन लाइन पर। क्यों भाई, H को क्यों रखना चाहिए? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है इसलिए। यस सर। मैंने तो कुछ ऐसा बताया नहीं था तुम्हें कन्वर्जन के लिए, पहले भी प्रायोरिटीज को भी देखना है, बताया था क्या? नो सर। प्रायोरिटी का तो कन्वर्जन से कोई लेना देना है ही नहीं भाई। 2D स्ट्रक्चर को 3D में करना है। आपको पता है कि 2D स्ट्रक्चर में जो ये वर्टिकल लाइन पे जो ग्रुप है ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये टुवार्ड द ऑब्जर्वर है। तो जो टुवार्ड द ऑब्जर्वर है उसको आप उस पे कैसे पहुंचा सकते हो? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इसका मतलब तो आप गलती कर रहे हो फिर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। टुवार्ड द ऑब्जर्वर होना चाहिए। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। क्यों? तो ये H को भूल जाओ, हम सिर्फ इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं एक फॉर्मूला को दूसरे फॉर्मूला में, प्रायोरिटीज असाइन नहीं कर रहे सर हो हैं। गई। हो गई? क्या करना है, सिर्फ इतना याद रखना है सर कि या तो आप Cl को रख दो यहाँ पे या फिर CH2OH, क्योंकि ये हमारे कहाँ पर है, ये अवे फ्रॉम द Vertical. ऑब्जर्वर है। यस सर। So groups present on the vertical line, any one of them has to be substituted to the broken line। CH2 जैसे मैंने यहाँ पे CH2OH कर दिया, and remaining has to be सर placed sequence. sequentially
ऑन द रिमेनिंग वैलेंसीज। तो सिक्वेंशियली पहले NH2 आ रहा है, फिर सिक्वेंशियली Cl क्या आ रहा है, NH Cl आ रहा है, फिर H आ रहा है। ठीक है, अब RS आप असाइन करके देख सकते हो इनके। सर कैसे एस करेंगे कंफिगर RS? देखो, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए था H, वर्टिकल पे नहीं है, कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल पे। तो हम इसका रिवर्स लिख सकते हैं जो भी हमारा आ रहा होगा। पहले इसकी प्रायोरिटी असाइन करो। प्रायोरिटी में सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होगी, Cl PL। सेकंड, NH2 थर्ड, NH2 CH2 फोर्थ, CH2H ये हो गया। सेम प्रायोरिटी यहाँ पे भी होंगी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो प्रायोरिटी अगर हम अभी डायरेक्ट बिना इंटर कन्वर्जेंस के लिए, बिना डबल इंटरचेंज के अगर हम इसको देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो मतलब एस। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये आर। भाई एक्चुअल में तो उल्टा हो जाएगा ना, क्यों होगा उल्टा, बताओ। सर जो H है वो सर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। हाँ, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इट शुड बी ऑन द वर्टिकल लाइन। अगर वर्टिकल लाइन पे होता तो जो हम जो निकालते वो एक्चुअल होता। ठीक है, बिकॉज नाउ इट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, सो वी हैव टू रिवर्ट द ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हमारा एस आ रहा था, इसलिए ये हो गया आर। ठीक है, दूसरा अब इसको देखते हैं, इसमें क्या होगा। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है, सॉलिड लाइन पर है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। होना कहां चाहिए था ये, ब्रोकन लाइन पर। तो इसमें भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको भी हम डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका उल्टा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये एच यहाँ इन दोनों इन प्लेन वाली लाइन पे होता तब हम ऐसे नहीं कर सकते थे रिवर्स। खाली रिवर्स हम कब कर सकते हैं, जब हमारा ये ब्रोकन की जगह सॉलिड लाइन पर हो। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इंटर कन्वर्जन नहीं भी करोगे तब भी बात एक ही है। तो ये क्या आ रहा है हमारा एस, एक्चुअल में क्या हुआ, ये आर आर। कॉन्फ़िगरेशन। आर कॉन्फ़िगरेशन। अब सही आया, दोनों मैच कर गए, वेरिफिकेशन हो गया। Yes, sir. ठीक ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, फिर अब अपना आप करना कन्वर्ट। कौन सा अमीनो एसिड है ये, एलानिन, PLA। इसमें कन्वर्ट करना है आपको। सर हो गया। हो गया, सर आर होना ही कॉन्फ़िगरेशन। चाहिए। आर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, बाकी लोग भी करो। हो गया सर। Sir, हो गया। हो गया, ठीक है, Done, sir. डन। चलो ठीक है, आगे चलते हैं फिर। सिलेबस है किसी के पास? अगर यस सर। सिलेबस है तो व्हाट्सएप करो एक बार मुझे, मैं देखता हूँ और क्या है सिलेबस में आगे।
मुझे लगता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगा अब। भेज दिया सर। हाँ भेज दिया यार, स्क्रीनशॉट ही भेज देता है, इतना लिंक भेजा है तुमने। है लिंक भेजा सर है सर। स्क्रीनशॉट ही भेजा है। काम काम नहीं कर रहा है ये, देखता हूँ। और हाँ सर स्क्रीनशॉट ही स्क्रीनशॉट भेजा भेजिए। किसी ने। हाँ मिल गया मिल गया। सर पर्सनली भेजे ग्रुप हाँ में। मिल गया मिल गया। In enantiomerism, diastereomerism, meso-compounds, ये थ्रियो, इरिथ्रो, डी एंड एल, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, CIP रूल, RS, ये सब कर लिया हमने, EZ नोमेनक्लेचर्स। बस कंफर्मेशनल एनालिसिस रह गया है इसमें, वो ही करते हैं फिर आप। कंफर्मेशनल एनालिसिस या कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म कैसे जनरेट होती है? इनिशियल क्लासेस में मैंने बताया था आपको, हाउ कैन वी गेट डिफरेंट कंफर्मेशंस? We can get different conformation by just rotation through the कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर हम कार्बन कार्बन CMP सर। सिंगल बॉन्ड, हाँ जो पहले लास्ट उसमें इनिशियल क्लासेस में बताया होगा, पहली क्लास में। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में तो मैंने बताया था, वी हैव टू ब्रेक द बॉन्ड्स to convert one conformation into configuration into another configuration, but in case of conformations we can get different conformation by just rotating the molecule through the carbon carbon single bond। जैसे हमारे पास सपोज करो ये इथेन मॉलिक्यूल है, CH3 इथेन। ठीक है, तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, फॉर रिप्रेजेंटेशन वी हैव टू फॉर्मूलाज, Tahor's formula and second is न्यूमैन फॉर्मूला और प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, दो हमारे पास मेथड्स हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज हैं, बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट द different conformations of the molecule. For example, we are having this CH3. If we represent that by Sauer's representation formula, पहले ये डिस्कस करते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इन Sauer's representation formula, we represent the carbons by two dots, the two carbons by the dots joining each other. Okay, so these are in the plane. This bond is in the plane में है ये, and another edge in form of the Y, the remaining valencies है, तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन विच जो ये ऊपर वाली लाइन से, इनको हम सॉलिड लाइन से शो कर सकते हैं, सॉलिड लाइन। डार्क लाइंस, डार्क लाइन का मतलब क्या है, ये हमारा हो गया अबाउट द प्लेन, अबाउट द प्लेन। ये दोनों वैलेंसीज कहाँ है हमारी, अबाउट द प्लेन। ये हमारा फ्रंट कार्बन है, ये हमारा क्या है, फ्रंट कार्बन। ये फ्रंट कार्बन के साथ में जो दो वैलेंसीज हैं इसकी, जो मैंने डार्क लाइन से शो किए, दीज आर अबाउट द प्लेन, और जो हमने नॉर्मल लाइन से शो की है वो क्या है हमारी, बिलो द प्लेन।
इसकी दूसरी स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है इफ यू रोटेट वन ऑफ द कार्बन बाई और 60 सर डिग्री। ये बीच वाले को क्या बोलते हैं, कॉमन वाले? ये कॉमन, ये जो लाइन है जो ज्वाइनिंग टू कार्बन्स, इट इज इन प्लेन, ये नॉर्मल लाइन है, प्लेन लाइन विच इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, ये प्लेन में है। बाकी आप जो देखोगे जो डार्क लाइन है जो मैंने शो की हुई है, 2 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन, दीज आर अबाउट द प्लेन। तो आप ये मान सकते हो जैसे ये मेरा हाथ है, ये 2 कार्बन हो गए, एक कार्बन यहाँ हो गया, दूसरा कार्बन यहाँ हो गया, दीज आर इन द प्लेन। और जो एक कार्बन की 2 वैलेंसीज हैं, ये जो ऊपर दिख रही है, ये हमारी अबाउट द प्लेन होगी, जिनको हमने सॉलिड लाइन से शो किया हुआ है। और एक अगर हम नीचे की तरफ ऐसे दिखा दें तो ये हमारी हो गई बिलो द प्लेन, ऐसे दूसरे वाले कार्बन के साथ में है। तो ये तो वन वे ऑफ असाइनिंग और वन वे ऑफ द रिप्रेजेंटेशन है, ये सौहार्द रिप्रेजेंटेशन। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, विच मैं बताऊंगा दोनों में को किस तरह से वो करते हैं। सो इफ यू रोटेट दैट बाय 60 डिग्री, so you can see here the angle between these two bonds are 120 डिग्री। क्या है, कितना एंगल है ये, 120 डिग्री। ठीक है, टोटल हमारा 360 होता है। सो बिटवीन द टू ग्रुप्स और 2 एटम जो है एंगल इट इज 120 डिग्री। अगर हम इसको रोटेट करते हैं बाई 160 डिग्री, यहाँ हमने सॉरी 60 डिग्री ओनली, इफ यू रोटेट दैट बाई 60 डिग्री we will get another form of this representation। रिप्रेजेंटेशन तो सेम ही रहेगा, बस उसका फॉर्म चेंज हो गया। फॉर्म चेंज होने से क्या हुआ, जो आपका y था ये फ्रंट वाला, अब ये इन्वर्टेड y बन गया, एक तरह से आप ये मान सकते हो इन्वर्टेड y। इसमें क्या हुआ, हमारा जो फ्रंट में जो कार्बन जो अबाउट द प्लेन 2 कार्बन थे वो दोनों चले गए बिलो द प्लेन, और जो हमारा बिलो द प्लेन था वो आ गया हमारा अबाउट द प्लेन, ये अबाउट द प्लेन। ठीक है, ये बिलो द प्लेन है। अब ये दोनों फॉर्म है कौन सी, सौहार्स फॉर्मूला है, सौहार्स रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला है। बट you can see here if a group is present on this carbon, front carbon, and on the back carbon, they will cover each other। if a observer is there, फ्रंट कार्बन के सामने यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो बैक वाले जो कार्बन के साथ जो ग्रुप्स अटैच है, he or she will not be able to see these groups because they are covered by the groups present on the front carbon। ठीक है, फ्रंट वाले कार्बन के साथ जो ग्रुप्स अटैच है वो कहाँ चले गए, हमारे बैक वाले जो है बैक वाले ग्रुप्स को क्या करते हैं, कवर करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म है, कैसी फॉर्म है ये, इक्लिप्स्ड फॉर्म। और यहां पे आप देखोगे तो जो फ्रंट कार्बन के साथ ग्रुप अटैच है, ठीक है, दे विल नॉट कवर द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बैक साइड कार्बन। ओके, सो यू विल बी एबल टू सी ऑल द ग्रुप्स attached with the front carbon as well as on the back side carbon। so this form is called staggered। staggered का मतलब क्या होता है, बिखरा हुआ, फैला हुआ। और इक्लिप्स का मतलब क्या हुआ है, ढका हुआ या कवर किया हुआ। तो ये दोनों ही सौहार्स रिप्रेजेंटेशन है, बट वन फॉर्म इज कॉल्ड इक्लिप्स फॉर्म एंड अनदर फॉर्म इज कॉल्ड स्टैगर्ड फॉर्म। अगर आप दोनों में देखोगे which form will be more stable, so you can see here these groups which are covering each other will show more repulsion, so this will be less stable। ठीक है, एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, they because they will feel the strain। but in case of staggered, because the groups are distinct, which are far away to each other and will experience less interaction, so this staggered form will be more stable compared to this eclipsed form। तो ये है हमारा सौहार्स रिप्रेजेंटेशन, सौहार्स वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कन्फर्मेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। दूसरा दिखाता हूं आपको, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिए, because we are taking example of the ethane।
वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ द इथेन। तो इथेन मॉलिक्यूल में आप देखोगे कि जो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है, इक्लिप्स्ड फॉर्म में जो हाइड्रोजन्स हैं फ्रंट कार्बन पे, वो बैक साइड वाले जो हाइड्रोजन्स अटैच हैं उनको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, मेकिंग इट लेस स्टेबल, एंड दिस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल, स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है। और अब अगर यही फॉर्म जो हम इथेन मॉलिक्यूल है, इफ वी रिप्रेजेंट दैट बाय न्यूमान फॉर्मूला, देन हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दैट? न्यूमान भी आप समझ लो एक बारी। न्यूमान में क्या होता है, वी रिप्रेजेंट द फ्रंट कार्बन बाय ए डॉट, डॉट इसके आगे आप लिख लेना फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन, we represent the front carbon by a dot and the back carbon by a circle। जो बैक वाला कार्बन है वो क्या है, सर्कल। ये बैक और रियर कार्बन है, ये रियर कार्बन। ये तो हो गई बात हमारी दोनों कार्बन्स की। ठीक है। लेकिन जो कार्बन की जो वैलेंसीज हैं, the valencies of the front carbon which has been represented by dot are shown originated from this dot। डॉट से ओरिजिनेट कर दी हमने तीनों वैलेंसीज इसकी, these are originated from the dot, and valencies, three valencies of the rear carbon or back carbon are represented originated from the circle, from the circle। These are not originated from the center, these are originated from the circle। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। नाउ यू कैन सी हियर द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द फ्रंट कार्बन which has been represented by dot are covering the group present on the rear carbon which has been represented by the circle। So this form will be eclipsed form, eclipsed form। दूसरा क्या होगा, अगर हम इसको 60 डिग्री रोटेट कर दें, इफ वी रोटेट दैट बाय 60 डिग्री, सिक्सटी डिग्री रोटेट करने पे क्या हुआ जो हमारा फ्रंट कार्बन था विच वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट, ठीक है, नाउ द ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन दैट कार्बन आर नॉट कवरिंग द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द रियर कार्बन, दे हैव एंगल ऑफ 60 डिग्री। this angle is called dihedral angle, dihedral angle, this is 60 degree, 60 degree angle। So if you want to represent ethane molecule, then you can place hydrogens here। So you can see the hydrogen attached with the front carbon are covering the hydrogens of the back side carbon or the rear carbon in eclipsed form, but in staggered form they are not covering each other, they have सर डायहेड्रल एंगल है कितना डिग्री का है? 60 डिग्री हो गया ना भाई। नॉर्मल एंगल हमारा 120 डिग्री है, उसका हाफ कितना हो गया 60, इट इज 60 डिग्री डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, 5 मिनट का आप रेस्ट करो। अब हम 340 पे फिर से स्टार्ट करेंगे आगे, इससे आगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लो।
हेलो, अटेंडेंस हो गई सर?
अब हम करेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कन्फर्मेशनल एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? That is the discussion of energy associated with each form. ठीक है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस में क्या किस चीज के एनालिसिस करते हैं? वी आर कंसीडरिंग द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच फॉर्म। ठीक है, तो इन दैट केस वी रिप्रेजेंट द एनर्जी एट y axis and angle of rotation at x axis. So first of all, we will discuss about the conformational analysis of the ethane molecule. Ethane molecule. So I already have told you ethane molecule can be represented by the two forms. One is called eclipsed form. This is eclipsed form. And another is called staggered form. This is staggered form. So we have seen here, and we already have discussed that this form is less stable, this eclipse form, because the groups are covering each other. They will interact with each other, making it unstable compared to this one, in which the groups are away from each other. They are not covering each other. Okay, and we can convert one structure into another. This is eclipsed into staggered by rotation through the carbon-carbon single bond by 60 degree. If we do 60 degree rotation, then we can convert eclipse form into the staggered form. This is more stable and this is less stable. So what we do in conformational analysis, we represent these forms, eclipse form and staggered form, in this graph, keeping energy at the y-axis and the angle of rotation at x-axis. So if we represent that here, suppose this is the one structure. So here you can also represent that by न्यूमन फॉर्मूला। न्यूमन फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो H H H H H एंड H। और दूसरा कैसे होगा, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। So this more stable staggered form will be here at the lower energy level. It will be here. Similarly, here you will also have the staggered form. And here we will have the less stable eclipsed form at higher energy level. And what is this angle of rotation? Initially this is 0. Now this after 60 degree, then at 120 degree and so on. इसी तरह से आप करते जाओगे
तो आपको फिर से इक्लिप्स फॉर्म मिलेगी और वापस से फिर से हमें स्टैगर्ड फॉर्म मिलेगी। ठीक है। So this difference between the energy of the most stable form, most stable यहाँ तो खाली दो ही फॉर्म है हमारे पास, एक स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड। तो डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ दीज टू फॉर्म्स इज मोर स्टेबल एंड लेस स्टेबल। लेस स्टेबल इज दिस, difference between this is called the torsional strain. Torsional strain, टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है आगे लिख लेना आप इसके। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड द लीस्ट स्टेबल फॉर्म। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। सर दोबारा रिपीट करना एक बार। हाँ, टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होती है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड लीस्ट स्टेबल फॉर्म। क्योंकि यहाँ तो हमारे पास खाली दो ही फॉर्म है, लेकिन अभी हम प्रोपेन देखेंगे, ब्यूटेन देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मोर देन 2 स्ट्रक्चर्स आर देयर। तो वहां पे जो मोस्ट स्टेबल होगी और जो लीस्ट स्टेबल होगी उनका जो एनर्जी डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड द टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वन फॉर्म इनटू अनदर, you can say the most stable and the least stable, most stable and least stable, that energy difference, energy of activation, this is called energy of activation. So we need to provide this much amount of energy if we want to convert this staggered form into this eclipsed and eclipsed into the staggered form. हमारी ऑलरेडी स्टेबल स्ट्रक्चर है, अगर हमें इसको अनस्टेबल वाली स्ट्रक्चर में जो कि लेस स्टेबल है उसमें कन्वर्ट करना, वी हैव टू प्रोवाइड दैट मच ऑफ एनर्जी विच इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जब हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे देन दिस फॉर्म विल कन्वर्ट इनटू द अनदर। सो दिस डिफरेंस फॉर दिस इथेन मॉलिक्यूल इज 3 kilocalorie per mole. It's a very less amount of energy which is required to convert staggered form into this eclipsed form of the ethane molecule. So easily it can be obtained. So it is easily interconvertible. होना क्या है, सिर्फ एक रोटेशन ही होना है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। So it requires very less amount of energy. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ द इथेन। दोनों तरह से रिप्रेजेंट करके आप दिखा सकते हो, हॉर्स फॉर्मूला में भी दिखा सकते हो और आप न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में भी दिखा सकते हो। Now you can see the conformational analysis of propane molecule. Propane. Propane में क्या होगा? If you replace one of the hydrogen by the methyl group, it will become the propane. So this is the eclipsed form of that. और दूसरी कौन सी होगी इसकी? स्टैग। ठीक है, ये इसकी स्टैगर्ड फॉर्म हो गई। या अगर आप न्यूमैन फॉर्मूला में दिखाओगे तो आपको पता चल जाएगा CH3। सर बहुत ब्लर आ रहा है। सर बहुत ब्लर आ रहा है, थोड़ा वेट कर लो एक बार, थोड़ा नेटवर्क का कई बार इशू होता है। अभी भी ब्लर है? नाउ सही है सर। ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको? तो ये हमारा क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है। अभी ये किस फॉर्म में है? इक्लिप्स फॉर्म में। ठीक है,
और अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं बाय 60 डिग्री, तो ये हमारा मिथाइल ग्रुप कहां पे आ गया, CH3। नाउ दे आर नॉट कवरिंग ईच अदर, यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा इक्लिप्स फॉर्म हो गया, ये स्टैगर्ड। इसके लिए भी हमारी दो ही फॉर्म पॉसिबल है। तो यहाँ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको CH3, और ये यहाँ पे हमने कर दिया CH3, ठीक है। और यहाँ पे ये कर गया एक दूसरे को कवर, CH3। और इसके लिए एनर्जी चाहिए आई थिंक 3.3, इसके लिए भी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं, इट इज नीडेड 3.3 किलो कैलोरी पर मोल। एनर्जी जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज इन किलो कैलोरी पर मोल है। तो ये हमने कंफर्मेशन एनालिसिस किसका किया अभी, प्रोपेन मॉलिक्यूल। प्रोपेन में सिर्फ हमारा एक हाइड्रोजन किससे सब्स्टिट्यूट हो गया है, मिथाइल ग्रुप से। तो इफ वी डू 60 डिग्री रोटेशन, देन वन फॉर्म इक्लिप्स फॉर्म कैन कन्वर्ट इनटू द स्टैगर्ड फॉर्म। वैसे बेटर ये रहता है कि हम पहले स्टैगर्ड फॉर्म शो करते फिर इक्लिप्स करते, बिकॉज स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो मोर स्टेबल फॉर्म में ही रहता है ज्यादा प्रोपोर्शन जब भी किसी मॉलिक्यूल का होगा। तो उसके बाद एनर्जी प्रोवाइड करके हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्लिप्स फॉर्म में। तो ये तो इथेन और प्रोपेन, दीज आर द सिंपल मॉलिक्यूल। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द ब्यूटेन, it will have multiple structures, multiple conformations। कैसे देखते हैं एक बारी। Now see the conformations of the butane। मैं न्यूमैन फॉर्मूला में दिखा देता हूं आपको डायरेक्ट पहले एक बार। मोस्ट स्टेबल से हम स्टार्ट करेंगे। मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें हमारे दोनों को दोनों जो बल्की ग्रुप में मिथाइल ग्रुप्स, दीज आर अवे फ्रॉम ईच अदर एट मैक्सिमम एंगल, 180 डिग्री पर है, दोनों अपोजिट है, ठीक है। कितने कार्बन हुए अभी इसमें टोटल बताओ मुझे ब्यूटेन में। न्यूमैन फार्मूला में कैसे पता चलेगा कितने कार्बन है। ये हमारा फ्रंट कार्बन हो गया, ये रिंग बैक कार्बन हो गया, एक कार्बन ही हो गया, एक ही हो गया, टोटल कितने हो गए, 4 कार्बन। तो ये हमारा है ब्यूटेन। कौन सा फॉर्म हुआ ये, जिसमें हमारे दोनों बल्की ग्रुप्स जो है मिथाइल ग्रुप्स, दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म, और स्टैगर्ड में भी इसको हम बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड। दिस इज एंटी स्टैगर्ड। तो ये हमारे फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 60 डिग्री का रोटेशन करना है, 60 डिग्री। सर एंटी स्टैगर्ड किस लिए? बिकॉज जो बल्की ग्रुप दोनों वो एक दूसरे का अपोजिट है, एंटी है, एंटी है ना एक दूसरे के अपोजिट। तो दिस इज स्पेसिफाइड एज एंटी स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम इसको 60 डिग्री रोटेट करें, क्या करना है हमें, 60 डिग्री रोटेट करना है। कौन सा कार्बन रोटेट करूं मैं, फ्रंट वाला ही कर देते हैं, ठीक है।
तो जैसे सपोज करो अब ये हमने यहाँ से रोटेट किया, बैक वाले कार्बन को मैं स्टैटिक रखता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर हम दोनों को एक साथ अगर मूव करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। बैक साइड मैंने स्टैटिक रख दिया, ठीक है। और जो फ्रंट कार्बन था हमारा, ये फ्रंट कार्बन, इसको जब हम मूव करेंगे तो मिथाइल ग्रुप कहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया 60 डिग्री। और H एंड H कौन सी फॉर्म हो गई है, इक्लिप्स्ड है। कौन सी फॉर्म है ये, इक्लिप्स फॉर्म। अब मैं फिर से इसको रोटेट करूंगा 60 डिग्री। बैक साइड वाले को हमें स्टैटिक रखना है, एक किसी एक को ही रोटेट करना है टाइम पे। तो बैक हमारा जहां था वैसे एज इट इज रहेगा, एच एच ये CH3। अब फ्रंट वाले में जो हमारा ये मिथाइल ग्रुप पे कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ ऐसे आ गया, यहाँ पर CH3 H H। ये कौन सा हो गया, स्टैगर्ड। ये हमारी सेकंड स्ट्रक्चर आई एंड दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर। फिर से हमने इसको 60 डिग्री रोटेट किया, 60 डिग्री का रोटेशन हमने फिर से अप्लाई किया, कीपिंग द बैक साइड कार्बन स्टैटिक, H H एंड CH3। अभी स्टैगर्ड से कैसा आएगा, इक्लिप्स्ड फॉर्म में आएगा। कैसा फॉर्म आएगा, इक्लिप्स्ड। तो यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप आ गया, ये मिथाइल यहाँ मूव करेगा, 60 डिग्री हम रोटेट करेंगे तो ये यहाँ जाएगा। ये कैसा है, इक्लिप्स्ड। ये फोर्थ स्ट्रक्चर हो गई हमारी। फिर से एक बार रोटेट करें अगर इसको हम, अब कैसा आएगा, स्टैगर्ड। मिथाइल ग्रुप कहाँ आ गया, यहाँ। ये कैसा हुआ, स्टैगर्ड। एक बार फिर से स्टैगर्ड को हम रोटेट करें 60 डिग्री। अब क्या सिचुएशन बनेगी हमारी, CH3 H H, और ये फिर से कैसा हो जाएगा, स्टैगर्ड हो जाएगा, इक्लिप्स्ड हो जाएगा। H, ये मिथाइल आ गया है, ये मिथाइल कहाँ चला जाएगा, यहाँ। और ये H सर बहुत ब्लर है। 6 ब्लर है, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लो, सही हो जाएगी। कई बार क्या मैं जब लिखता हूँ हाँ, फिर से 60 डिग्री करेंगे तब हमारा स्ट्रक्चर कौन सा आ जाएगा, वापस से फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब आगे आप करोगे इसको रोटेट तो क्या आ जाएगा हमारा, फिर से यही आ जाएगा सेम, क्योंकि अब हम रोटेट करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर।
अब हमारे पास फिर से फर्स्ट स्ट्रक्चर आ गया रिपीट होकर में। क्या ये सारी स्ट्रक्चर सब विजिबल है, अब दिख रही है आपको? यस सर। दिख रही है ना? अब पहले आप ये लिखो, फिर मैं इनको आगे डिस्कस करके बताऊंगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है, कैसे बनी, ये समझ में आ गया। हमने एक कार्बन को जो बैक साइड वाले को उसको स्टैटिक रखा हुआ है, बाकी जो फ्रंट वाला कार्बन हम उसको 60 डिग्री एंगल लेते हुए हर बार हम घुमाते जा रहे हैं। तो पहले स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड से इक्लिप्स बनेगा, इक्लिप्स फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स। तो इस तरह से हमारे पास में 6 स्ट्रक्चर्स आ गए। 7th स्ट्रक्चर हमारी सेम होगी, जो कि हमारी फर्स्ट वाली होगी। तो फर्स्ट वाली हो जाएगी। हाँ, ये भी इक्लिप्स्ड है। अब इसमें जो ये इक्लिप्स फॉर्म है नंबर 4, आप देखो यहाँ पे दोनों बल्कि ग्रुप एकदम से दोनों को कवर कर रहे हैं, एक दूसरे को, दोनों के दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या होगी हमारी, हाईली अनस्टेबल, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगी, बिकॉज दोनों के दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। सो दे विल शो हाईएस्ट इंटरेक्शन। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स विल बी मैक्सिमम इन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली क्यों? बिकॉज और जगह भी इक्लिप्स्ड है, but methyl group is covering hydrogen and hydrogen is covering the methyl group. So as compared to this fully eclipsed structure, these structure will be little bit more stable. ठीक है, although they will be unstable compared to the staggered structure. अब स्टैगर्ड में देखिए, जो मैंने पहली स्ट्रक्चर बताई थी आपको एंटी स्टैगर्ड, एंटी में तो दोनों के दोनों बल्कि ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पर है एक दूसरे से 180 डिग्री पर। लेकिन जो बाकी स्टैगर्ड है, ये स्टैगर्ड है जो, इसमें दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप 60 डिग्री एंगल पर है। ठीक है, यहां पे भी 60 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, और इसलिए हम इनको बोलते हैं स्क्यू, SKEW, स्क्यू स्टैगर्ड, SKEW, स्क्यू स्टैगर्ड, स्टैगर्ड। और जो हमारी पहले थी स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड। इसी तरह से जो हमारी ये इक्लिप्स फॉर्म है सेकंड, और जो हमारी ये 6 आई है, ठीक है, इक्लिप्स तो है ये, मिथाइल ग्रुप इज कवरिंग हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज कवरिंग मिथाइल ग्रुप, बट द बल्किएस्ट ग्रुप मिथाइल ग्रुप्स आर नॉट देयर विच आर कवरिंग ईच अदर। तो जो फुल्ली इक्लिप्स्ड है उसके कंपेयर में दोनों स्टेबल होंगी ज्यादा, तो इनको हम लिखते हैं स्क्यू इक्लिप्स्ड, SKEW, स्क्यू इक्लिप्स्ड, स्क्यू इक्लिप्स्ड। अब 6 के 6 स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर लिए, जिनमें से एक तो हमारी एंटी स्टैगर्ड है जो कि हाईएस्ट स्टेबल होगी, फुल्ली इक्लिप्स्ड है जो कि लोएस्ट स्टेबल होगी, सबसे कम स्टेबल होगी। उसके बाद स्क्यू स्टैगर्ड है, स्क्यू स्टैगर्ड हमारी एंटी स्टैगर्ड के कंपेयर में कम स्टेबल होंगी, बट स्क्यू इक्लिप्स के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होंगी। तो 4 एनर्जी स्टेट्स हमारे पास आई। ठीक है, सो टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होगा इसमें, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द एंटी स्टैगर्ड एंड द फुल्ली इक्लिप्स्ड। एंटी स्टैगर्ड और जो फुल्ली इक्लिप्स स्ट्रक्चर है उसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड द torsional strain of this butane molecule. Similarly, energy of activation required for this conversion, for this conformational interchange, it will be the difference between the energy of the least stable fully eclipsed and the most stable anti-staggered, which is called energy of activation. ठीक है, तो अगर हम इसमें इसका एनर्जी का वो लगा के देखें, सीक्वेंस देखें, तो हमारा सबसे पहले हाईएस्ट स्टेबल कौन सा, एंटी स्टैगर्ड, देन स्क्यू स्टैगर्ड, देन स्क्यू इक्लिप्स्ड।
देन फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो लीस्ट स्टेबल हमारा कौन सा हुआ? फुल्ली इक्लिप्स्ड। मोस्ट स्टेबल एंटी स्टैगर्ड। कोई और रिलेशन भी दिख रहा है आप लोगों को इनमें, मॉलिक्यूल्स में? स्क्यू स्टैगर्ड जो हमारी है थर्ड एंड फिफ्थ, दोनों को देखो क्या रिलेशन है दोनों में। स्क्यू स्टैगर्ड थर्ड एंड फिफ्थ, क्या सर रिलेशन वन दिख की रहा अगेंस्ट ऑफ एट 60 डिग्री एंगल। है? 60 डिग्री एंगल। और अगर हम इनके बीच में मिरर फिक्स करें तो क्या मिरर इमेज है एक दूसरे की? मिरर इमेज दिख रही है ना? यस सर। यस यस सर। सर। So you can say this structure third and fifth. Similarly आप देखो skew eclipsed तो है हमारी सेकंड एंड सिक्स, क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? यस सर। मिरर इमेज है ना? तो आप लिख सकते हो द स्ट्रक्चर थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ एंड सेकंड एंड सिक्स आर कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर्स। क्या लिखेंगे हम? कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर्स। ठीक है, एक्चुअल में एनेंशियोमर नहीं है, ये कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर्स है। मिरर इमेज हमें दिख रही है, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है, लेकिन जैसे ही हम इसको रोटेट करते हैं तो ये वापस से सेम मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इनको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर्स। और बाकी आप रिलेशन देखोगे आप इसमें जो हमारी स्क्यू इक्लिप्स्ड और स्क्यू स्टैगर्ड में, इन दोनों में अगर आप रिलेशन देखोगे दीज आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, सो दीज आर डायस्टेरियोमर्स। तो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर कन्फर्मेशनल डायस्टेरियोमर्स। कन्फर्मेशनल डायस्टेरियोमर्स। These are conformational diastereomers. अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कैसे शो करें इसको? कंफर्मेशनल एनालिसिस कैसे दिखाएं इसकी? कर दूं इरेज? ये सबने नोट कर लिए? Yes, sir. यस सर। समझ में आ गए सबके, या किसी को कुछ डाउट है, पूछना हो तो बता सर दो। सर सर सेकंड कंफर्मेशनल थर्ड। डायस्ट्रोमर्स का बता दो एक बार और। कंफर्मेशनल डायस्ट्रोमर जैसे हमारा स्क्यू इक्लिप्स्ड, ठीक है, और स्क्यू स्टैगर्ड, कोई भी उठा लो, स्क्यू इक्लिप्स्ड और स्क्यू स्टैगर्ड, दोनों का रिलेशन देखो, क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है? नहीं है ना मिरर इमेज। और जो मिरर इमेज नहीं होते वो क्या होता है? डायस्टेरियोमर्स। So these are conformational diastereomers. Skew eclipsed structures are conformational diastereomers of skew staggered structures. ये लिख लो आप, तो उसमें सब कवर हो जाता है। ओके सर। एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। एंगल ऑफ रोटेशन 0 डिग्री, 60, 120, 120 के बाद आ गया 180, 180 के बाद 240, देन 360, 300 होगा ना, 300 देन 360। तो हमने 0 से स्टार्ट करें। ये आ जाएगा
ये हमारा 0 हो गया, 60 डिग्री पे आ गया ये। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारी कौन सी स्ट्रक्चर है, पहले ये बताओ। एंटी स्टैगर्ड, CH3, जितनी कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल। CH3, ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर थी हमारी, है ना। CH3 एंड CH3 कौन सी स्ट्रक्चर थी, फर्स्ट एंड सेवंथ। सेवंथ कह सकते हो या फिर फर्स्ट ही कह सकते हो फिर से। ये हमारी एंटी स्टैगर्ड स्ट्रक्चर थी। और लीस्ट स्टेबल में हमारी कौन सी आ रही थी, फुल्ली इक्लिप्स्ड। CH3, CH3, H, H, H एंड H, ये लीस्ट स्टेबल हो गई। फिर हमारी आ रही थी स्टैगर्ड, यहाँ पे जो स्क्यू स्टैगर्ड थी। स्क्यू स्टैगर्ड हम कैसे लिखते हैं, ऐसे CH3, CH3, H, H, H एंड H। दूसरी स्क्यू स्टैगर्ड कैसी हो जाएगी, ये CH3 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, कन्फर्मेशनल इनेंशियोमर। ठीक है। इसके बाद हमारी जो ये इस वाला एनर्जी लेवल पे कौन सी आएगी, इक्लिप्स्ड ही होगी। बट कौन सा इक्लिप्स्ड होगी, स्क्यू इक्लिप्स्ड। और यहां पर भी दूसरी आ जाएगी। H, H एंड H। स्क्यू स्टैगर्ड हमारी थर्ड थी, थर्ड। ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हुई, और ये हमारी हो गई 6। तो ये हमने इसका एनर्जी डायग्राम बना दिया। और जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी वो कितनी होगी, ये जो मोस्ट स्टेबल से लीस्ट स्टेबल का जो डिफरेंस है, ये हमारी होगी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, EA। सर ऊपर वाला नहीं दिख रहा। ऊपर वाला फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड नीचे बनाया होगा ना स्ट्रक्चर, वो है। दिखा दूंगा नहीं तो कोई बात नहीं, लो दिख रहा है अब। यस। अब ठीक है। एनर्जी देखते हैं इसकी कितनी है। तो ये एनर्जी जो डिफरेंस है, दिस इज, यहां तक जो एनर्जी डिफरेंस है ये 3.4 किलो कैलोरी पर मोल। ये वाला एनर्जी डिफरेंस है, ये है 5.4, यहां से और यहां तक। और जो आपका ये डिफरेंस है, दिस इज 0.8। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी हो गई इसकी, 5.4 एंड 0.8, दोनों को ऐड करो आप, कितनी आ जाएगी, 6.2। ये हमारी आती है 6.2, 6.2। ये है इसका एनर्जी कंसिडरेशन। अच्छा एनर्जी दोबारा बताना सर एक बार। देखो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर से सेकंड स्ट्रक्चर में जो जा रहे हैं हम, ये एनर्जी डिफरेंस है 3.4 किलो कैलोरी। ठीक है। और अगर हम देखें यहां से स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 3 से फोर्थ के बीच में जो जा रहे हैं, दिस इज 5.4। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें, ये स्ट्रक्चर नंबर 3 और जो ये स्ट्रक्चर नंबर 5, इनका डिफरेंस देखें तो ये 0.8। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमारा क्या होता है, जो लीस्ट स्टेबल, जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है और लीस्ट स्टेबल है, उसका डिफरेंस। तो उसका डिफरेंस हमारा आ जाएगा 0.8 एंड 5.4, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.2।
तो इतना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमें चाहिए अगर हमें कन्वर्ट करना है ये फुल्ली स्टैगर्ड को एंटी स्टैगर्ड को फुल्ली इक्लिप्स में अगर कन्वर्ट करना, वी नीड 6.2 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी, जो कि क्या हो गया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या फिर टॉर्शनल स्ट्रेन भी हम इसको बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। बोल दो। क्या बोल दूं? अटेंडेंस? नहीं सर, स्ट्रक्चर्स के नाम, ये जो सर मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल के। मोस्ट स्टेबल एंटी स्टैगर्ड, सबसे पहली स्ट्रक्चर आपने लिखी थी एंटी स्टैगर्ड, लिखी थी ना? यस सर। और लीस्ट स्टेबल हमारी हो जाएगी फुल्ली इक्लिप्स्ड। ओके सारी सर। चीजें तो डिस्कस की थी पहले ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ द साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, फिर ये चैप्टर हो जाएगा Okay, आपका सर कंप्लीट। एक चीज बता दीजिए सर। हाँ पूछो पूछो। सर ये आपने 3.4 जो लिखी है सर, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी स्किल से? नहीं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये तो गिवन वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना। ओके सर। ये आप याद कर लेना, नहीं भी करोगे तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है ना, ये तो नॉलेज के लिए है, ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, बस हमें पता चल गया कि ये एनर्जी डिफरेंस कितना है। अटेंडेंस ले लेता हूँ बस एक बार, है ना, कि नोट sir. करो तब तक। सर सर वो हर्ष की अटेंडेंस लगा देना, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा, वो कोई इशू हो रहा है। सर रोल नंबर 24 जतिन, उसका नेटवर्क इशू हो गया है, उसकी भी अटेंडेंस लगा देना। सर मेरी भी। सर सर 49 सर 4977 उसका रोल नंबर। किसका? हर्ष का सर, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, बता देना मुझे अभी ना। आज डेट सर कितनी हो गई? 41 की भी लगा दीजिए। हाँ पहले, अभी तो मैंने किसी की लगाई नहीं है, पहले वेट करो थोड़ा। सर 13 है, 13। हाँ एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं आज की डेट लिख लेता हूँ। आज डेट 13 है कितनी होगी? सर, 13 जनवरी 2022। अच्छा, रोल नंबर स्टार्ट होता है 4901 से आपका, है ना? यस सर। यस सर। सर 4901। प्रेजेंट सर। चलो ये रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं पहले, है ना, स्टॉप रिकॉर्डिंग।